I'm hyper excited today to welcome a very special friend of mine, whom when I invited, I was really very excited. And then gradually, this morning, my excitement turned into my goosebumps when I started thinking, how do I introduce my special friend who is actually a maverick? This friend of mine is a Marine officer. He is a photographer. He is a Sanskrit scholar. He is an astrologer. He is an Urdu poet. He is a patriarch. He is a philosopher. He is a filmmaker. God has been very, very kind to very, very few people on this planet to have blessed so many gentle qualities, so many creative qualities under one brain. I feel so blessed to welcome Mr. Praveen Chaturvedi, a very dear friend of mine. Welcome, Praveenji, and thanks a lot for accepting this time. Thanks a lot. Thank you for remembering me. How are you doing, sir, during this pandemic time? It has been definitely a rough time for all of us. Lekin, amongst all odds, I've been trying to sail through it, and things are getting better now. So I'm also feeling good, feeling better now. I've called you today on to for this conversation, which we have started. We have started a campaign and we named it "My Social Responsibility." We are seeing a trend since past 2 years that people have stopped cribbing about the government as an institution. People have stopped depending upon NGOs for community service. People have not bothering much about what some corporates are doing in their corporate social responsibilities, and every human being is coming out as more human and helping each other. Thus, we coined this term as my social responsibility, that now every individual has become very socially responsive, and this pandemic has is evolving us into a better human society. What is your take on this? Definitely, I also see a marked shift, in people's perspective, and I also see that people are becoming more and more aware. And I think looking at it, from a very, long shot, as we call it in cinema, I think everything comes around in the world. If you see, in earlier times, we were a very responsible and very aware and very awakened society. People, not only thought, about their society in general, but they thought, about their country. And in our, philosophy of our country, in fact, we looked, the world as a family. Vasudhaiva Kutumbakam. That's what we said always. हमारा ये संकल्प था कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, और इसीलिए आप जब भी देखेंगे हमारे वैदिक संकल्प को, तो आप देखेंगे उसमें हमेशा बात हुई है सर्वे भवन्तु सुखिनः। और इसलिए हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा अवेकेंड और रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थी पहले से। लेकिन बीच में शायद ये जज्बे कम हो गए थे, लेकिन हमें लगता है इस कोरोना ने, इस पेंडेमिक ने लोगों को फिर से जगा दिया है, वो जिम्मेदारी का एहसास दिला दिया है। तो निश्चित रूप से अब लोग बहुत अपना कर्तव्य बहुत जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, एक नागरिक होने का, बीइंग ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इसको बहुत अच्छे से उसका निर्वाह कर रहे हैं। और प्रवीण जी, जब आपकी प्रोफाइल पे कोई भी देखेगा तो उसको ये आश्चर्य होगा कि आपने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है यूनिवर्सल स्टूडियोज, पैरामाउंट पिक्चर्स, 20th सेंचुरी फॉक्स, सोनी पिक्चर्स और हॉलीवुड के सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ। तो लेकिन उसके पहले
आप एक मरीन गाय थे, तो ये जो शिफ्ट आपके करियर में आया, क्योंकि ये हम लोग जैसे आजकल के हालात पे सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि कोरोना के बाद हमारी जिंदगी, हमारा प्रोफेशन, हमारा बिजनेस बदल जाएगा। और यहाँ आप एक ऐसे जीते जागते शख्सियत है जिसने विलफुली अपना करियर कई बार शिफ्ट किया है। तो इसमें शिफ्ट करने की हिम्मत कैसे मिलती है, और हर बार सफलता पाने के पीछे का ये राज क्या होता है? मेरे ख्याल से संकल्प शक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से आप जो भी करें उसको बहुत शिद्दत से करना और उसको बहुत प्योरिटी से करना बहुत जरूरी होता है। अ, जैसा आपने कहा, मैं तो एक मैरीन ऑफिसर था, कैप्टन था मर्चेंट नेवी में। और मर्चेंट नेवी में क्या है कि आप यू ज्वाइन व्हेन यू आर वेरी यंग। और आई ज्वाइंड, सो the providence existence, it gave me the opportunity to travel the world, which was very fascinating for me. And you earn very well, you travel around the world, so you get a lot of exposure, a lot of experience. Traveling itself is a great education. So you went to such beautiful places, you saw so many cultures, so many countries. लेकिन हर चीज की एक होता है। मुझे लगा कि वो सब करने के बाद जो है, मुझे लगा कि व्हाट नेक्स्ट। तो हमें लगता है कि ये सवाल जो है वो मेरे अंदर से उठना शुरू हो गया कि क्या पूरी जिंदगी यही करना है कि कुछ और करना है। तो ये हुआ कि नहीं, ये तो नहीं करना है, करना तो कुछ और है, कुछ और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ये जज्बा हमेशा शुरू से था मेरे अंदर। लेकिन दूसरा सवाल था कि करना क्या है, और ये स्पष्ट नहीं था उस समय। ये था कि ये तो हमने कर लिया, हम इस करियर में बहुत वेरी यंग एंड वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर, ये तो हमने बहुत अच्छे से किया। लेकिन और क्या कर सकते हैं, ये सवाल जो है परेशान करता रहता था। तो आई वॉज ए पोएट एंड आई वॉज अ राइटर एंड आई वॉज अ फोटोग्राफर, इन माई अर्ली डेज, सिंस माई अर्ली डेज। तो लेकिन ये था कि इसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाएंगे। तो अपने फ्री टाइम में हम कुछ शायरी लिखते थे, कुछ फोटोग्राफी करते थे, कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, कुछ है ना, इस तरीके के अपने शौक को तसल्ली देते थे। और वो ऑलमाइटी वाज सो काइंड, गुरुओं की ऐसी कृपा थी कि आई अराइव्ड एट ए पॉइंट, जहाँ पे ये ट्रांजिशन होना संभव हो पाया। तो उसके दो ट्रांजिशंस हुए हमारी लाइफ में। एक तो ट्रांजिशन हुआ कि हम शिप पे ही थे, तो हमारा शिप कनाडा जाता था। और हम जब शिप के सेफ्टी ऑफिसर थे, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आया ऊपर हमारे हेड ऑफिस से कि शिप पे एक फिल्म क्रू आएगा जो कुछ दिन हम लोग के साथ सेल करेगा, और वो एक फिल्म की शूटिंग करेगा। तो हमें असाइन किया गया कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि शिप्स आर डेंजरस प्लेसेस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और स्पेशली जो एक नया आदमी आएगा, उसको सब कुछ बताना और उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सेफ्टी अपनी ही नहीं, पूरी शिप की सेफ्टी को जेपरडाइज कर सकता है। तो हमें असाइन किया गया, तो वो क्रू आया, पूरे इसमें बहुत से लोग थे, बड़े उपकरण थे, इक्विपमेंट्स थे फिल्म के उनके, वो सब आए, वो लोग हम लोग के साथ सेल करना शुरू किए। तो उनके साथ साथ काम करते करते और उनकी थोड़ी मदद करते करते उसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनसे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। और दोस्ती क्या, वो इतना अच्छा वो दिन गुजरे उनके साथ, उनकी हमने हर संभव मदद की। कुछ सेफ्टी के रिलेटेड शॉट्स लेने थे, तो कुछ जो भी उनको सेफ्टी के इक्विपमेंट चाहिए थे, वो सब हमने उनको उनके लिए उपलब्ध करा दिए। तो उन्होंने जाते जाते कहा कि हमें अभी भी उनकी शब्द याद है, उन्होंने कहा कि आई हैव मेड ए ग्रेट फ्रेंड इन यू एंड प्रॉमिस मी व्हेन यू साइन ऑफ द शिप यू विल स्टे विद मी फॉर फ्यू डेज। तो हमने कहा ठीक है। उस समय हम उतना सीरियस नहीं थे, लेकिन
साइन ऑफ आया तो उनको पता था, ही वॉज अ वेरी वेल रिनाउंड पर्सन, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इन कनाडा. तो ही केम टू पिक मी अप ऑन द शिप. उन्होंने कहा यू हैड प्रॉमिस्ड और आपको चलना होगा. तो मैंने कहा लेकिन अभी तो मेरा टिकट वगैरह हो गया. बोले वो आई विल टेक केयर ऑफ दैट. तो फिर वो हमको इमिग्रेशन ऑफिस में गए, वहां पर उन्होंने परमिशन दिलाई. एवरीबडी न्यू. और उसके बाद फिर वो अपने घर ले गए. तो हम उनके घर पे गए और गेस्ट रूम नीचे था. तो बहुत खूबसूरत, एक बहुत बड़ा बंगला था नदी के किनारे, सेंट लॉरेंस के किनारे. और ऊपर उनका स्टूडियो था, नीचे रहने का था. तो एक दिन हम देखते थे ऊपर से, हम तो आराम से सो के उठते थे, देखते थे कि वो बड़ी आवाजें आ रही है फिल्म्स की, कुछ हो रहा है, एक्शन वगैरह. तो हम एक दिन चले गए ऊपर. हमने जाके देखा तो वहां पे देखा कि एक फिल्म की एडिटिंग हो रही थी. कई लोग बैठे थे. तो हमारे दोस्त ने सबको सबसे इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने. और हम बैठो, ये ऐसे ऐसे एडिटिंग हो रही. तो हम फर्स्ट टाइम हमने एडिटिंग अपनी लाइफ में जो देखी, इन दैट मोमेंट आई थिंक आई फेल इन लव विद सिनेमा. और मुझे लगा कि यही वो चीज है जिसकी तलाश मुझे थी बहुत सालों से, और यही है जिसको मैं अपना करियर बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम. तो मतलब तो फिर हमने वो जो एडिशनल असाइनमेंट था वो डेस्टिनी की नॉक थी. एकदम एग्जैक्टली. तो हम वो सब देखे. तो फिर हमने उनसे कहा, अबाउट ए ग्रेट मैन, मिशेल उनका नाम था. हमने उनसे कहा कि हम आपसे फिल्म मेकिंग सीखना चाहेंगे, क्या आप हमको सिखाएंगे? तो उन्होंने कहा कि ओह यस, विद ग्रेट प्लेजर. बोले apart from being a film producer and director, I had also been a honorary professor of cinema in the University of Laval. तो हम बिल्कुल सिखाएंगे. तो हमने कहा बिल्कुल. तो दिस ग्रेट मैन अगले दिन से उन्होंने हमको सिखाना शुरू किया. वो 12 बजे दोपहर तक अपना काम जो है समेट लेते थे. उसके बाद हमारे सिनेमा के क्लासेस होते थे. तो राइट फ्रॉम स्क्रैच आई स्टार्टेड लर्निंग सिनेमा फ्रॉम हिम. और फिर हमने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. बहुत सीखने को मिला प्रैक्टिकली. और फिर उन्होंने ही हमको सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि आई शुड टेक ए फॉर्मल ट्रेनिंग एज वेल. तो उन्होंने जो है काफी मदद की इसमें. तो फिर हमने जो बेस्ट सिनेमा स्कूल था उस समय, हम आई वाज नॉट श्योर, पता नहीं होगा कि नहीं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज था. तो वहां पे हमने जो उसकी जितनी फॉर्मेलिटीज होके है वहां पे हमने अप्लाई किया. और लकली हमारा एडमिशन हो गया. तो इस इधर बीच काफी समय तक हम उनके साथ ही काम किए. हम इंडिया आते थे, शिप पे जाते थे, उनके पास जाते थे, फिर इंडिया आते थे, ऐसे. और फिर जब हमारा एडमिशन हो गया तो हम वहीं कनाडा से चले गए यूएस, वहां पे फिल्म मेकिंग पढ़ने. फिर वहां पे हमने फिल्म की पढ़ाई की. और उसके बाद बहुत से वहां लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का. और फिर उसके बाद हमने कई स्टूडियो में जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिली हमने काम किया. तो ये एक जो समझ लीजिए पहला ट्रांजिशन ये हुआ. तो सिनेमा तो हम सीख लिए और वहां पे काम भी करने लगे. लेकिन फिर वही सवाल अंदर से ये था कि अपने देश वापस जाना है, अपने देश के लिए कुछ करना है. लेकिन वही है ना, ये सब बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब जिंदगी किसी दिशा में ढलने लगती है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको फिर संवार के दूसरी दिशा में ले आना. तो एक बार फिर दूसरा वाकया हुआ कि अंदर से ये जज्बा तो था ही, जाना है. दूसरा वाकया हुआ कि एक पॉइंट ऑफ रिवोल्यूशन और रियलाइजेशन. न्यूयॉर्क में हम थे और वहां से सबवे से हम पहुंचे सेंट्रल पार्क. और वहां से उतर के हम जा रहे थे. तो सब लोग बड़ी तेजी से जा रहे थे, तो हम भी उसी तेजी से चलने लगे, जबकि हमको कोई ऐसी जल्दी नहीं थी किसी चीज की. लेकिन चूंकि सब तेजी से चल रहे थे, भाग रहे थे, हम भी भागने लगे. निकल के जब बाहर आए सेंट्रल पार्क की तरफ, तो अचानक ही पता नहीं क्या हुआ कि हम डूब गए. और हमने कहा कि मुझे तो कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है, मैं क्यों इस तरीके से भाग रहा हूँ. तो मुझे लगा कि ये यहाँ के माहौल का असर है. सब लोग भाग रहे हैं तो सबकॉन्शियसली मैं भी उससे अफेक्टेड हूँ, मैं भी भाग रहा हूँ. तो मैं रुक गया और मैं सबको ऑब्जर्व करने लगा. तो दूसरा सवाल ये मन में उठा कि क्या इसी भागा दौड़ी में जिंदगी गुजार देनी है? तो अंदर से आया कि नहीं,
जिंदगी में इत्मीनान का होना बहुत जरूरी है। तो हमने मुझे लगा कि इस देश में या किसी और देश में, अपने देश के अलावा, वो सुकून, वो इत्मीनान, वो कैफियत नहीं मिल सकती है। तो हमने उसी समय ये निर्णय लिया कि हम अपने देश वापस जाएंगे और अपने देश में, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए हम जो भी बढ़िया से बढ़िया फिल्में बना सकते हैं वो फिल्में हम बनाएंगे। और उसी के बाद फिर मैं वापस लॉस एंजलिस गया, फिर वहां से वापस आया और फिर यहाँ पे आके हमने मूनलाइट पिक्चर्स की शुरुआत की और एक नया चैप्टर, एक अध्याय शुरू हुआ हमारी जिंदगी का। तो सर, जब इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, इंटरनेशनल हॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करने का मौका मिला, और डेफिनेटली आपकी क्राफ्ट के कायल पूरी दुनिया में लोग हैं, हम भी उन्हीं में से एक हैं, मुरीद आपके क्राफ्ट के। तो उस पूरे प्रोसेस में आपके पास, यू ऑलवेज मस्ट हैव हैड द ऑप्शन ऑफ गोइंग आइदर साइड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट व्हाई डिड यू चूज टू वर्क ऑन सोल ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोल ऑफ इंडिया? जैसे आपने गोरखा रेजिमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो शायद गोरखा रेजिमेंट की शौर्य गाथा को बताने वाला दुनिया का आज तक का सबसे अनूठा डॉक्यूमेंटेशन रहा होगा। ये आत्मा की पुकार कैसे आती है, उसके बारे में कुछ बताइए, वो कैसे हुआ? मुझे लगा फिल्म मेकिंग सीखने के बाद कि फिल्म मेकिंग इज ए वेरी वेरी पावरफुल मीडियम, और पावरफुल है तो इसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि फिर वही है कि कोई भी चीज पावरफुल होती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो हमें लगा कि, और फिर हमने जब चारों तरफ नजर उठा के देखी तो हमें लगा कि कहीं भी इसका बहुत अच्छा सदुपयोग नहीं हो रहा है ना। हिंदुस्तान में बहुत महान ट्रेडिशन रहा है शुरू से स्टोरी टेलिंग का। हमारे पास बहुत एक से एक, आप देखिए, उपनिषद में, पुराणों में, जातक कथाओं में, पंचतंत्र में इतनी वैरायटी है हमारे पास, एक से एक अनूठी कहानियों की। हमारी संस्कृति जो है वो इसी पे बेस्ड है। कथाएं हमारे यहाँ, पूजाओं में कथाएं होती है ना। हमारे यहाँ हर चीज के लिए जो है ना, स्टोरी टेलिंग का बड़ी समृद्ध परंपरा रही। लेकिन हमें ये लगा कि हमने वो त्याग के हम किस तरीके की फिल्में बना रहे हैं, कितनी फूहड़ता परोस रहे हैं, कितना इसका विपरीत असर पड़ रहा होगा बच्चों पे, आने वाली जनरेशन पे। तो हमें लगा कि नहीं, अपने जीवन में हम ये तो नहीं करेंगे। हम ये करेंगे कि हमने जो भी सीखा है इस क्राफ्ट को इतने अच्छे से, इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर करके, ईश्वर ने हमको मौका दिया इसको बहुत अच्छे से तराशने का। तो हम अपने हुनर को, अपनी शफा को, हम जो बहुत अच्छे पहलू हैं हमारी संस्कृति के, हमारे देश के, हमारे समाज के, उनको बहुत अच्छे से हम उनके प्रेफरेंस बना के लोगों के सामने रखेंगे, जिससे कि लोग, हमारे देश के वासी, हमारे आने वाली जनरेशन के लोग, हमारी युवा पीढ़ी, वो उससे बहुत प्रेरणा पाए उसको देख के, और बहुत नजदीक से जाने अपनी संस्कृति को, अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को। तो उसी का एक कड़ी थी कि इंडियन आर्मी के साथ जब ये मौका मिला काम करने का, तो गोरखा रेजिमेंट्स की जो है, बहुत पुरानी जो है उनकी रेजिमेंट है, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी रेजिमेंट की आप के ऊपर फिल्म बनाए, बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से। कैसे हो सकता है आप इसको पूरे 200 वर्ष के इतिहास पर बताएं। तो वो काम करते करते जो है उनके साथ बहुत ही दिलचस्प चीजें हुई, और बड़े अनूठे तरीके से हमने उस फिल्म को बनाया, और कुछ ऐसे बनाया कि अभी तक की फिल्में जो है वो मतलब ऑफिसर्स की मार्टिर के ऊपर, और है ना, जनरली उनके ऊपर होती थी। हमें लगा कि इसमें जो रियल गुरखाज हैं, जो वॉर वेटरन्स हैं, जो 62 वॉर में, 71 वॉर में, 65 वॉर में, है ना, जो रियली जाके वहां पे लड़े थे, उनको उनको ढूंढा जाए। तो उनको ढूंढने का टास्क किया गया, फिर उनको वहां नेपाल से बुलवाया गया, और फिर एक यहाँ पे
एक विलेज का एक सेट तैयार किया गया था, और फिर फिल्म की शुरुआत होती है कि उनको बूढ़ा कहते हैं, बूढ़ाज, कि एक वॉर वेटरन, वन बूढ़ा, वो यंग बच्चों को बिठा के और वो अपनी शौर्य गाथा बता रहा है, अपने अच्छा। युद्ध का जो उसके साथ क्या हुआ था, आंखों देखी उसकी, जो उसका अनुभव था, वो उनको वो कहानी, वो दास्तान उनको सुना रहा है। फिल्म की शुरुआत वहां से होती है। तो वो जो है वो सभी आर्मी ऑफिसर्स ने और सभी लोगों ने, व्यूअर्स ने उस पहलू को बड़ा पसंद किया कि एक शौर्य गाथा से आग आग जल रही है, आग ताप रहे हैं लोग बैठ के, और वहां से फिल्म की ओपनिंग हो रही, शुरुआत हो रही है। तो वो बड़ी पसंद आई लोगों को। मतलब वो किस्सा गोई के तरीके से। किस्सा कोई के तरीके से सुना था। वहीं से फिर जो है शुरुआत होती है, इंट्रोडक्शन गुरखा रेजिमेंट का, पूरा इतिहास, पूरा फ्लैशबैक में इतिहास शुरू होता है। अच्छा प्रवीण सर, जैसे अपार्ट फ्रॉम कि आप मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं, उसके अलावा दैट वाज नॉट द मेन रीजन व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू टू कम ऑन दिस टॉक। मेरा जो मुख्य कारण आपको चूज करने का इस टॉक के लिए था, हमने रिसेंटली आपकी सोशल मीडिया पे एक बड़ी यूनिक सी एक्टिविटी देखी। जैसे एज ए फिल्म मेकर, एज ए डॉक्यूमेंट्री मेकर, आप जो भी काम करते हैं वो आपका प्रोफेशन है और उससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन एक बड़ी अनोखी सोशल मीडिया पे इधर बीच आपकी एक एक मुहिम चल रही है, जो आई एम वेरी श्योर आप रेवेन्यू के लिए तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई किसी को भी उससे रेवेन्यू कैसे मिले नहीं मालूम। आप हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर कुछ चीजें बना रहे हैं, छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं। बहुत सारे जैसे हमारे एज के या हमसे भी कम एज के लोग हैं जिनको हम हमारे हिंदुस्तान के कल्चर और इतिहास की वो सच्चाइयां नहीं पता है। कुछ हम लोगों को बायस्ड और ऑल्टर्ड वर्जन पते हैं। उनके ऊपर आप एक सीरीज के तरीके से बना रहे हैं। तो ये एज ए फिल्म मेकर, हाउ डिड यू टुक इट एज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हिंदुस्तान के इतिहास की कहानियों को श्रृंखलाओं में और इतने आसानी से समझने वाले तरीके से जो आप धीरे धीरे इंसैमिनेट कर रहे हैं। ये एक मेरा मेन रीजन था कि मतलब शायद ही कोई फिल्म मेकर होगा जिसने ऐसी सामाजिक जिम्मेदारी अपनी निभाना शुरू किया होगा। उसके बारे में कुछ बताइए। तो मूनलाइट पिक्चर्स की जब शुरुआत हुई तो उसका जो संकल्प था वो ये था कि वी विल रिवॉल्यूशनाइज द स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, द वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग इन इंडिया। और उसके तहत हमने, और मूनलाइट वाज एज यू नो, इट वाज ए फिल्म स्टूडियो एज वेल एज ए डिजाइन स्टूडियो। तो उसमें तो बहुत सी चीजें और होती थी, डिजाइनिंग भी होती थी, ब्रांडिंग भी होती है, अभी भी होती है, और फिल्म भी बनती थी। प्राइमरली ऑब्वियसली इट वाज अ फिल्म स्टूडियो। तो वो ईश्वर की कृपा से वो बहुत अच्छा कामयाब हुआ, आगे बढ़ा। तो मन में एक जज्बा जो फिर दबा हुआ था वो अंदर से आवाज लगाने लगा कि ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने महान इस धरोहर के लिए, अपने सच्चे इतिहास के लिए। और हमारे देश में जो बहुत महान लोग हुए हैं, एक से एक ऋषि मुनि संत महात्मा क्रांतिकारी देशभक्त, उनकी जो स्टोरीज हैं, सही उनकी जो शौर्य गाथा है, उसको कैसे हम सबके सामने सही स्वरूप में लेके आए, बहुत पावरफुली सिनेमेटिकली। तो वो एक शेर है कि मैं उसमें बहुत यकीन करता हूँ उसके जज्बे में, कि कोई बज्म हो कोई अंजुमन, कोई बज्म हो कोई अंजुमन, ये शहूर अपना कदीम है, मतलब बहुत पुराना है। कोई बज्म हो कोई अंजुमन, ये शहूर अपना कदीम है, जहां रोशनी की कमी दिखी वहीं एक चिराग जला दिया। क्या बात है, क्या बात तो है। हमें लगा कि why I did, because I thought nobody is doing it। और हमारे जो सोच रही है शुरू से, और जैसा आपसे भी हमारी गुफ्तगू हुई थी,
कि हम अगर बैठ के ये सोचें कि ये सरकार करेगी या समाज करेगा, ये एनजीओ करेगा, तो हम उस सोच के कायल नहीं हैं। हमें हमें लगता है कि जिसको जो करना है वो करे या ना करे, हमारा कर्तव्य है कि हम करें, हम जो कर सकते हैं। तो हमें लगा कि नहीं, इस चिराग को, इस लॉ को, इस अलग को हम ही जलाएंगे। और इसीलिए हमने इस एक सोशल इनिशिएटिव की शुरुआत की, जो एक बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है पूरे विश्व में, और जिसके बारे में हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम उसका क्रेडिट अपने आप को नहीं देना चाहते हैं। और वो हमने कहा कि गुरुओं की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, और बहुत अच्छी टीम वर्क है, उनका प्रयास है, हमारी टीम का, सब लोग साथ में मिलकर इसको किए। और उसका क्रेडिट हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें लगा कि ये देश के लिए है, एक सेल्फलेसली हम इसको करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो उसकी शुरुआत हुई। अब उसमें हम लोग बहुत से इनिशिएटिव्स हैं। प्राइमरीली फिल्म्स हम लोग बना रहे हैं, अलग अलग बहुत से अलग अलग इश्यूज पे, अलग अलग चीजों पे, और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो प्रवीण जी, जो अभी आपने हम लोग को बताया कि जो आपने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, आप लोग इन प्रोसेस है, हमें याद आता है कुछ समय पहले हमने देखी थी एक डॉक्यूमेंट्री का शायद क्लिप था, गुरु, शायद गुरु शिष्य परंपरा कैसे हिंदुस्तान में चल रही है उसके ऊपर। तो उसका ख्याल कैसे आया आपको, और उसके लिए आपने क्या मेहनत किया और कैसे सोचा? जी, तो ये इंडियन हिस्ट्री पे नहीं है ये इनिशिएटिव। ये असल में भारत इतना महान देश है कि यहाँ का भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान, भारतीय विद्याएं, भारतीय विज्ञान और भारतीय इतिहास, भारत की जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप में इतनी समृद्ध हैं। यहाँ की उन्हीं में से एक था गुरु शिष्य परंपरा, जिसका बीच में थोड़ी सी वो हमें हमें लगा कि वो परंपरा धीरे धीरे कम हो गई है। तो इस इनिशिएटिव के तहत हमें लगा कि इन सभी चीजों के ऊपर हम लोगों को फिल्म्स बनानी चाहिए। तो हम और चूंकि हम खुद एक गुरु शिष्य परंपरा में ही हैं, हमारे उसी में दीक्षित हैं, तो हमारे गुरुओं ने हमेशा हमको प्रेरणा दी थी, और हमने उसको बहुत नजदीक से अपने जीवन में गुरु शिष्य परंपरा क्या है, हमने उसका अनुभव किया था। और कितना पवित्र रिश्ता होता है गुरु और शिष्य के बीच में, और कैसे गुरु ही जो है वो ज्ञान की अलख जलाता है शिष्य के हृदय में, उसकी आत्मा में। ये हमें अपने जीवन में स्वयं देखा था। तो हमारे मन में प्रेरणा थी कि हमें इस दिशा में कुछ करना चाहिए, कि हमें गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर, इसके महात्म के बारे में, इसके महत्व के बारे में हमें बताना चाहिए तो अपने अपने देशवासियों को, पूरे विश्व को। और इसका इस परंपरा का खत्म होना जो है हमारे हमारे समाज के लिए, ये बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं होगा। तो जैसे आपका इनिशिएटिव है माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमको भी लगा कि दिस इज माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, गुरु के महत्व के बारे में अवश्य सबको सबको बताएं। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ ए 10 सीरीज ऑफ 10 फिल्म्स दैट वी आर मेकिंग। उसमें सबसे जो प्रमुख फिल्म है उसमें से गुरु शिष्य परंपरा, इसके अलावा और 9 फिल्में और बना रहे हैं जो भारतीय संस्कृति पे है, भारतीय शास्त्रों पे है, जैसे आयुर्वेद के शास्त्र पे है, जैसे इतिहास पे है, रामायण और महाभारत के ऊपर है, जैसे अघोर के ऊपर है। अघोर एक बहुत विकसित विज्ञान है हमारे देश का, उसके बारे में अंग्रेजों ने जिसपे बहुत बहुत ही भ्रांतियां। कम सेकेंडरी डेटा मिलता है। हाँ, बहुत कम मिलता है, अघोर तो पे बहुत भ्रांतियां। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बहुत कम मिलती है। हाँ, तो हमें लगा कि अघोर वास्तविक रूप से साइंटिफिक तरीके से क्या है, ये लोगों को समझाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अंग्रेजों ने, मीडिया ने तो बहुत अवधारणा फैलाई, अलग अनपढ़ बातें फैलाई इसके बारे में, तो लोग विमुख हो गए इससे। तो ये एक बहुत समृद्ध परंपरा हमारे देश की है, तो अघोर के ऊपर है। और ऐसे ही जो वास्तविक जो इतिहास के तथ्य जो हमको छुपाए गए हैं हमसे, और हमें गलत इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री भी हमें गलत बताई गई,
उसमें उसका हमें लगा कि उसकी भ्रांतियों को खत्म करके उसका सही पक्ष लोगों के सामने रखना है, उसके ऊपर फिल्म से है। जैसे अंग्रेजों ने जो है एक गलत थ्योरी हमारे यहाँ फैला दी थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो वो उसका फ्रॉड को जो है उजागर करने के ऊपर एक फिल्म। तो ऐसे अलग अलग 10 फिल्मों की सीरीज है। उसमें से एक जो बहुत अंदर से बहुत दिनों से एक मन में विचार और प्रेरणा थी कि गुरु शिष्य परंपरा पे हम चाहते हैं कि हमारे देश में अब आधुनिक शिक्षा जो है ये अधूरी है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है ना, ये बहुत अधूरी है और ये धीरे धीरे बहुत कमर्शियल हो गई। और इसमें हमारे जो पारंपरिक ज्ञान विज्ञान का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं होता है इनके करिकुलम्स में। तो हमें लगा कि हम वाकई ये चाहते हैं कि हमारी फिल्म इसी दिशा में एक प्रयास है कि लोग गुरु शिष्य परंपरा की तरफ फिर से प्रेरित हो और ये गुरु शिष्य परंपरा ये फिर से पुनर्जीवित होके हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में फिर से स्थापित हो। इसी दिशा में हमारा एक प्रयास है। तो प्रवीण जी ये बताइए कि कभी कभी ये आश्चर्य होता है कि मतलब आखिर प्रवीण चतुर्वेदी में ऐसा क्या है कि जब कोई विदेशी इंडिया को सोचता है और इंडिया के बारे में एकदम आत्मा वाली डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है, जैसे मेरे पास एक ये सीडी बहुत दिनों से आपकी साइन की रखी हुई थी, ये विक्टोरिया प्रोडक्शन हाउस है, जब वो इंडिया में आता है तो वो प्रवीण चतुर्वेदी को रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारे लिए कुछ बना दो। तो ऐसा ऐसा इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये परसेप्शन कैसे बना कि जिस नजरिए से, जिस लेंस से, जिस चश्मे से प्रवीण चतुर्वेदी हिंदुस्तान को देखना जानते हैं, उससे उस नजरिए से बहुत लोग नहीं देखना जानते। एक पुराणों में कथा है कि देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति और असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। तो जब देवताओं और असुरों का युद्ध होता था तो देवता जब असुरों को मारते थे तो शुक्राचार्य उनको संजीवनी विद्या से फिर जिंदा कर देते थे। तो गुरु ने कहा, गुरु बृहस्पति गुरुदेव ने कहा, उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को बोला कि तुम असुरों के पास जाओ और तुम ये संजीवनी विद्या सीख के आओ, नहीं तो हम लोग तो कभी इनसे हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो कच्छ जो है वो जाता है शुक्राचार्य के पास, उनसे निवेदन करता है और शुक्राचार्य के चरित्र में देखिए कि वो इवेंचुअली उसको संजीवनी विद्या सिखाते हैं। तो हमारे गुरुओं ने भी हमको जो है वो वेस्टर्न कंट्री में, पाश्चात्य में भेजा एक संजीवनी विद्या सीखने के लिए। और ये संजीवनी विद्या इस युग की वो है फिल्म मेकिंग। तो हमने चूंकि इनकी विद्या को इन्हीं से सीखा और इन्हीं के अंदाज में और इन्हीं के सबसे एडवांस टेक्निक से सीखा, तो हमारी जो फिल्म मेकिंग है वो उसमें वर्ल्ड की जो टॉप टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से वो प्रयोग की जाती है। हमारा स्टूडियो भी बहुत एडवांस्ड है, उसमें सभी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं। हमारा वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक कंट्री में 3D एनिमेशन स्टूडियो लैब है और कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंटीग्रेशन है। तो हम कई हॉलीवुड की फिल्मों के साथ उनके लिए भी हम करते हैं काम। तो उनको जब भी पता चलता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस है, कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम हॉलीवुड की टक्कर का काम करते हैं और हमारे काम को जब वो देखते हैं तो हमें लगता है आकृष्ट होते होंगे, प्रेरित होते होंगे। तो उनको लगता है कि ये जो है वो उस टेक्निक को वैसे ही जानता है और हिंदुस्तान में है तो बहुत सस्ता है हमारे लिए। तो वो लोग आते हैं तो वो अपनी जो रिक्वायरमेंट बताते हैं, तो हम इंसानियत के नाते हम उनके साथ हो लेते हैं और उनके साथ काम करते हैं और जो भी बढ़िया से बढ़िया होता है काम करके उनको देते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण है मेरे पास कि भाई हमने बोला कि विक्टोरिया नाम का एक प्रोडक्शन हाउस था ऑस्ट्रेलिया का जो हिंदुस्तान को कैप्चर करना चाहता था, तो वो प्रवीण जी को कांटेक्ट किया। अब उसके जस्ट 360 डिग्री अपोजिट इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हाउस, जिसके पास सारे टेक्नोलॉजी है, जिसके पास सारे फ्लीट्स ऑफ कैमरामैन होंगे, जिसके पास डॉक्यूमेंट करने वाले, भाई वो सबसे बड़ा अखबार हिंदुस्तान का हिंदी का छापता है, जिसका हाईएस्ट सर्कुलेशन है। जब उस मीडिया हाउस को एक कॉफी टेबल बुक निकालनी है और उसको बनारस काशी के एसेंस, उसकी आत्मा को कैप्चर करना है,
तो वो अपनी इन हाउस टीम पे भरोसा न करके फिर से प्रवीण चतुर्वेदी के पास आ जाता है। तो आपके नजरिए में ऐसा क्या है कि आप बनारस की आत्मा को उस तरीके से कैप्चर करते हैं जिस तरीके से कोई और आज तक नहीं कर पाया? वही नजरिया आपने जैसा कहा ना, वो एक गाना है ना, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हसीन है। तो कला में इस दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है किसी भी कलाकार फनकार के लिए। उसके अंदर ये नजरिया होना बहुत जरूरी है कि किस नजरिए से वो चीजों को देखता है। हमारे अंदर बस यही है कि हम उसको उसके बहुत मौलिक स्वरूप में देखने की कोशिश करते हैं। तो इट वाज सो काइंड ऑफ जागरण ग्रुप, कि जब वो पहले तो आए थे वो कॉफी टेबल बुक बनाने के लिए। तो हमारा पूरा मूनलाइट का पूरा डिजाइन डिपार्टमेंट है, फोटोग्राफी का डिपार्टमेंट है, बन जाएगी, बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो फिर हमने उनको बल्कि सजेस्ट किया कि देखिए कॉफी टेबल बुक तो बना देंगे, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि कॉफी टेबल बुक के साथ साथ इसके ऊपर आपको बनारस, एक्चुअली उसका नाम था सुबह बनारस, बनारस की सुबह का क्या महात्म्य है, उसके ऊपर वो कॉफी टेबल बुक थी। तो हमने कहा इसको एक फिल्म भी बननी चाहिए। और हमने कहा कि देखिए लोग आते हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया से आते हैं, वो घाटों की फोटो खींचते हैं, सूर्योदय की फोटो खींचते हैं, और तमाम साधु संतों की फोटो खींचते हैं, कोई गलियों की खींचते हैं, कोई गरीबी की, कोई भिखारियों की खींचते हैं, और इसी तरीके से वो पूरे विश्व में हमारे हमारे शहर काशी को दिखाते हैं। लेकिन हमने कहा कि काशी तो एक जीवित और एक जागृत नगरी है, ये सबसे प्राचीनतम नगरी है पूरे विश्व की, और यहाँ की संस्कृति आज भी जीवित है, और बड़ी अद्भुत यहाँ की संस्कृति है, बड़ा गजब का यहाँ के लोगों की जीवन शैली है, जिंदगी को जीने का एक ढंग है, जिंदगी को देखने का एक नजरिया है, और एक दर्शन है अपने आप में। और इसके बारे में आज तक जो है लोगों ने जाना नहीं कि वास्तविक रूप से काशी बनारस का क्या जीवन जीने का क्या ढंग है, क्या उनका दर्शन है, क्या उनकी मस्ती है, क्या उनका पकड़पन है, और क्या बनारसीपन है। तो ये बात उनको पसंद आई, तो दोनों प्रोजेक्ट साथ में शुरू हो गए, हमने काम करना शुरू कर दिया। और सुबह बनारस नाम की फिल्म जो कि बहुत पसंद की गई, और सुबह बनारस नाम की कॉफी टेबल बुक आई, बहुत अच्छी टीम मिल गई, बहुत ही बड़े विद्वान आचार्य पंडित धर्मशील चतुर्वेदी जी, उन्होंने लेखन की जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने पूरी किताब कॉफी टेबल बुक का लेखन किया। और बहुत अच्छे लोग थे, जागरण के वाइस प्रेसिडेंट विकास चंद्रा जी, वो साथ में होगी। हमारे टीम जो है वो बहुत, क्षितिज और अभिषेक और अतुल, वो सब लोग थे इस टीम में। सबने बड़ी बहुत मेहनत से दिन रात काम किया, और एक बहुत अच्छा एक फिल्म और एक कॉफी टेबल बुक बन गई। तो हमें लगा कि बनारसी होने के नाते, और मैं बड़ा फख्र से कहता हूँ कि मैं एक बनारसी हूँ, क्योंकि बनारस जैसी जगह तो पूरे विश्व में मुझे तो नहीं मिली, और मैं पूरा विश्व में बहुत अच्छी तरीके से घूम चुका हूँ। तो मुझे लगा कि ये दिस इज माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज ए बनारसी हम कम से कम एज ए फिल्म मेकर और एज ए बनारसी हम बनारस के सही पक्ष को, असली पहलू को पूरी दुनिया के सामने एक बहुत मजबूत ढंग से हम रखें, बहुत पावरफुली एक अपनी फिल्म के माध्यम से रखें, और उसमें जो है कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आई। तो हमें लगता है कि ये हमारा प्रयास जो है बहुत सफल हुआ, कामयाब हुआ। तो प्रवीण सर, जब आप एज ए बनारसी, हमें लगता है कि आप एक तरीके से बनारस के एम्बेसडर के रूप में, जितनी बार आपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया है शायद ही किसी ने किया होगा। तो फॉर सेक ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर अनअवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, आप अगर ये शेयर करें प्लीज कि आपने कौन से फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है और वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो तो बड़ी लंबी फेरिस्त है। I'm a very I may be a filmmaker and a media person, but I'm very media shy myself. हमें अपने आप को, मतलब हम आपसे इवन बात करने के लिए हमें अपने आप को काफी समझाना पड़ा, क्योंकि चूंकि आपने कहा था, कोई और कहता तो हम यूजुअली हम आना नहीं चाहते हैं।
लेकिन आपसे एक दोस्ती है, एक दिलबरी है, बहुत पुराना साथ है। तो आपने जब कहा तो फिर हमें अपने आप को समझाना पड़ा कि चलो ठीक है, दिल की बात करेंगे, अपनी जिंदगी की दास्तान की बात करेंगे। और हम बड़ा शाई महसूस करते हैं अपने आप को, अपने बारे में बात करना या अपने अपने आप को सामने लाना, या अब जब जब और इवन अपनी फिल्म्स भेजना भी जो है, हम लोग हमारे ऑफिस में उसको भेज देते हैं, नहीं तो हमें लगता है कि हमारा हमेशा फोकस होना चाहिए कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है कि हम काम बहुत अच्छा करें। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो है वो आपको ऑडियंस से मिलता है, आप जैसे लोगों से मिलता है, जब वो कहते हैं कि हम बहुत इंस्पायर्ड हुए आपकी फिल्म देखिए और हम बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। ऐसे जो लोग मिलते हैं, जो लोग मैसेजेस लिखते हैं, जो लोग ईमेल्स लिखते हैं, वो सबसे बड़ा हमारे लिए अवार्ड है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। लेकिन चूंकि वो एक दुनिया है, उसके अपने दस्तूर हैं, तो बहुत से फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्म जाती रही है, जाती भी है, हिंदुस्तान के भी फिल्म फेस्टिवल्स में, बाहर के फिल्म फेस्टिवल्स में। और हमने कोशिश की, जैसे जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ पे ऋषिकेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, दिल्ली फिल्म फेस्टिवल है, ऐसे तमाम फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्म गई, लोगों को बहुत पसंद आई। कहीं फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला, कहीं हमको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। तो बहुत खुशी भी अंदर से, एक तस्कीन मिलती है, अच्छा लगा हमें। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया था, क्योंकि when you go to a film festival, you know, you interact with, a lot of people who have a lot of passion and love for cinema. तो सबसे जो अच्छी चीज होती है कि वो उनके साथ इंटरेक्शन जो होता है वो बड़ा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि कोई किसी देश से आया है, कोई किसी देश से आया है, कोई किसी पूरी अपनी जिंदगी के अनुभव, अपनी अपनी संस्कृति को साथ में लेके आया है अपनी फिल्मों के माध्यम से। तो आप उनकी फिल्में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आप जब उनसे मिलते हैं तो आप एक्सचेंज करते हैं अपने पर्सपेक्टिव्स को। एज ए फिल्म मेकर वो अपना नजरिया आपके सामने रखता है, एज ए फिल्म मेकर आप अपना नजरिया, अपनी सोच, अपना फलसफा, अपना दर्शन जिंदगी का फिल्म के प्रति, चीजों को देखने के प्रति वो सामने रखते हैं। तो बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत सुकून से खाली रह के बहुत सी फिल्म्स देखने का मौका मिलता है, जो अपने आप में बहुत, अपने आप में एक रिजुविनेशन देता है हमको। और दूसरा, बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जिनसे हम एक्सचेंज करते हैं अपने आइडिया, उनसे दोस्ती होती है। फिर उनके साथ ये होता है कि साथ में दो नजरियों को फ्यूज करके क्या काम किया जा सकता है। तो और अवार्ड वगैरह तो अपनी जगह है, वो तो मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए। हम्म। तो प्रवीण जी, अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको शिप पे एक नए मित्र बने मिशेल, और उनके एक्सपोजर से आप एक नए प्रवीण बने। तो अब आप 30 साल के अपने इस जर्नी के बाद, क्या आप कुछ इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ और प्रवीण तैयार हो? हाँ, एक लास्ट, हम हमेशा अपने टीम को बोलते हैं कि ये वाला लास्ट है, इसके बाद नहीं करेंगे। एक नए संकल्प पे काम करना शुरू किया, वो है भारत की, कि अभी वो पिछले साल भी देखा था, लेकिन इस साल हम बहुत आहत हुए देख के। हमें लगा कि भारत महान ऋषि मुनियों का देश रहा है, यहाँ पे इतनी समृद्ध ज्ञान और बहुत ही उच्चतम ज्ञान की, बहुत विकसित ज्ञान विज्ञान की परंपराएं रही हैं, ऐसे शास्त्र रहे हैं। उसी में से हमें लगा कि हमारे यहाँ इतना समृद्ध शास्त्र था और है अभी भी, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद का जो ज्ञान है, आयुर्वेद का जो शास्त्र है, और रस शास्त्र है, रस तंत्र का शास्त्र है, जो हमें बताता है कि हम कैसे एक बहुत ही एक हेल्दी जीवन शैली अपने जीवन में अपना सकते हैं, कैसे प्रिवेंटिव रह सकते हैं, कोई रोग हमें ना हो, और कैसे हम अपने आप को पूरी इस मॉडर्न मेडिकल के हाथों नहीं सौंप सकते हैं, जिनके पास अभी भी बहुत सी चीजों का उपाय नहीं। और हमारे पास उससे कई अधिक ज्यादा, हमारे पास कई रोगों का इलाज है, कई रोगों की औषधियां हैं, दवाएं हैं। तो हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया अभी हाल में,
और ये हुआ कि अपने इस प्राचीन आयुर्वेद और हस्तंत्र के ज्ञान को फिर से विश्व में स्थापित करें और बहुत बखूबी करें कि लोग जो है इस तरफ आकृष्ट हो, खासतौर हमारे देश के लोग। दुनिया तो हो रही है इसकी तरफ आकृष्ट हो, लेकिन हमें उन्होंने फंसा के रख दिया है अपनी ही मॉडर्न मेडिकल में। मॉडर्न मेडिकल भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसकी बहुत सीमाएं हैं। तो और उसके साथ साथ हमारे देश में हमें लगा कि क्यों नहीं अपना जो पारंपरिक ज्ञान है उसको उस दिशा में, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम हो। तो हमें लगा कि एक नया एक एक इनिशिएटिव शुरू करते हैं, एक नई लॉ जगाते हैं। तो हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, रसतंत्र नाम है उसका। धीरे धीरे सोशल मीडिया पे वो फेमस हो रहा है। और अब हम चाहते हैं कि अगर आपको सच्चे रूप में, अगर बहुत अच्छे से अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और विश्व के लिए अगर आपको काम करना है, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहें। तो वो उस अवस्था को, उस स्वास्थ्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं हर लेवल पे, उसको जो है इसके माध्यम से लोगों तक उस ज्ञान की धारा जो है वो रुकी हुई थी, उस धारा को हम चाहते हैं आवेदन को बहे और लोगों तक पहुंचे और हमारे देश के लोग उसका लाभ उठा पाए। तो ये एक नया इनिशिएटिव, नया प्रयास है, शुरू किया है। क्या बात। तो प्रवीण जी, जो आपने क्राफ्ट एक्वायर की है इतने लंबे सफर में, क्या आप नए टैलेंट्स को ग्रूम कर रहे हैं अपने इस क्राफ्ट में, ताकि ये टैलेंट और बढ़े और नए लोग और आए आपके जैसे क्राफ्ट सीखे हुए? नहीं, बिल्कुल। ये इसमें हमने कभी भी जो है, हम शुरू भी हमें इतने महान गुरु मिले जिन्होंने बहुत दिल खोल के हमको सिखाया। और हमें लगता है कि ये परंपरा जो है आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। आने वाली जनरेशन को सिखाना, उनको ट्रेन करना, उनको ग्रूम करना बहुत आवश्यक है, तभी ये परंपरा संपूर्ण रूप से आगे बढ़ेगी। तो पूरी दुनिया में हम जहां भी हमने जिन लोगों से सीखा, उन्होंने बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, खुले मन से, खुले दिमाग से, बहुत ओपनली, बहुत शिद्दत से हमें जो उस ज्ञान को हमें दिया है। तो हम भी कोशिश ये करते हैं कि हम इस ज्ञान को जो हमने सीखा है दूसरों से और जो अपने अनुभव से सीखा है, उसको हम बहुत भली भांति जो है नई आने वाली जनरेशन को, युवाओं को सिखाएं। और इसीलिए हमारे साथ बहुत से युवा जुड़े रहते हैं और उनमें से बहुत से लोगों को हमने सिखाया। आप तो हमारी टीम को जानते ही हैं। तो उसमें जो है वो सिर्फ एक ही आयाम का कोई ज्ञान नहीं होता है, वो एक अपने आप में संपूर्ण, पूरा होलिस्टिक ट्रेनिंग होती है, जिसका पार्ट होता है कि एक आध्यात्मिक जो है विकास भी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ मूनलाइट में, हमारे तमाम इनिशिएटिव्स में जितने लोग अटैच्ड हैं, उन लोग के लिए वो कंपलसरी है कि वो सवेरे उठें, अपनी ध्यान साधना करें, फिर वो लोग हमारे पास आते हैं तो हम लोग कोई ना कोई प्राचीन ग्रंथ का संस्कृत में पारायण करते हैं और उसके बाद किसी महान संत के की जो जीवन है, जो उनका दर्शन है, उसको पढ़ते हैं। ये है सवेरे के ध्यान और साधना के बाद, मेडिटेशन के बाद ये होता है। उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हो चल रहा है, किस प्रोजेक्ट में क्या करना है, आज के दिन का शेड्यूल क्या रहेगा, कौन सी चीजें कैसे स्ट्रीमलाइन करनी है। दुनिया भर में हमारे साथ लोग काम करते हैं, कैसे उन लोगों को कनेक्ट करना है, कैसे अपने प्रोजेक्ट को और खूबसूरत बनाना है और पावरफुल बनाना है। फिर ये डिस्कशन होता है, फिर सब लोग जाके अपना अपना काम शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो है परंपरा है, हमारे ऑफिस, हमारे स्टूडियो की, और जिसको बहुत स्ट्रिक्टली से अनुपालन होता है। आजकल इसमें जब लॉकडाउन में हम लोग इसी माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसमें जितने नए लोग जुड़ते हैं उनको भी इसका पार्ट हम बनाते हैं और वो लोग भी जो चीज सीखना चाहे वो खुले दिमाग से सीख सकते हैं। हमें लगता है कि वो संपूर्ण सार्वभौमिक विकास मन का, मस्तिष्क का, चेतना का, वो होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना आप कोई भी काम बहुत
बारीकी से और बहुत संपूर्णता से नहीं कर सकते। मतलब तो ये हमारे आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आपकी टीम के लिए मूनलाइट एक ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा एक गुरुकुल है। हाँ बिल्कुल गुरुकुल परंपरा ही है हमारे मूनलाइट स्टूडियो में, इस ऑर्गेनाइजेशन में। और चूंकि हमने कहा कि हम एक बहुत महान गुरु हमको मिले, आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने हमको इस परंपरा में दीक्षित किया, इस परंपरा में ढाला। तो हमें लगा कि हमारा कर्तव्य है कि हम भी आने वाली जनरेशन को, जो लोग मिलते हैं, हमसे जुड़ते हैं, उनको उस परंपरा का हम एक अभिन्न अंग बनाए। तो ये इस चराग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रवीण जी, जो पिछले 2 सालों से या ऐसा कहें 2020 से जिन मैक्रो हालात में पूरी दुनिया गुजर रही है इस पैंडेमिक की, तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्राफ्ट पे इसका छाप आएगा आने वाले समय में, इसका इम्प्रेशन? देखिए, निश्चित रूप से आया है और आएगा भी, और उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये एक हमारे इस काल की वास्तविकता है, और ये संपूर्ण विश्व की ऐसी परिस्थिति है। लेकिन किसी भी परिस्थिति से हताश और निराश होकर हमें नहीं बैठना चाहिए। तो हमें लगा कि हमें कंटिन्यूसली अपने आप को इवॉल्व करते रहना चाहिए। तो लास्ट पेंडेमिक जब आया तो ऑब्वियसली हमारी शूटिंग्स रुक गई, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हॉल्ट हो गए। तो हमें लगा कि क्या करना चाहिए। तो ये जो बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया पे इनिशिएटिव शुरू हुआ, ये लास्ट ईयर हुआ था। ये लास्ट पेंडेमिक को हमने सोचा कि अपने फेवर में लेके कैसे काम शुरू करें, खाली तो बैठेंगे नहीं। हम लोग सब लोग क्रिएटिव लोग हैं, पूरी टीम इतनी क्रिएटिव है, इतनी मोटिवेटेड है, इतनी पैशनेट है। तो हमने उस इनिशिएटिव की शुरुआत की, जो जिसके विषय में आपने बताया, जो हमारे दर्शन, हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान, हमारे विज्ञान को डिफरेंस बनाती है, और इतिहास में तो पूरे विश्व में उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो हमने इसको एक नया आयाम दे दिया, और उस पर बहुत जोर शोर में काम होने लगा। और उसमें सब लोग व्यस्त हो गए, तो भूल ही गए कि परिस्थितियां क्या थी। और जब लोग उसको पसंद करने लगे, उसका जब अप्रिसिएशन आने लगा, तो लोगों को बहुत सुकून और संतुष्टि मिली, और बहुत हौसला मिला आगे भी काम करने का। इस बार ये हुआ तो हम लोग ने एक नया संकल्प लिया, जिसके विषय में हमने बताया कि कैसे हेल्दी, जो हमारे पारंपरिक शास्त्रों में हेल्दी लिविंग के ऊपर आयु का जो वेद है, हम कैसे हम अपनी आयु को बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से हम जी सकते हैं स्वस्थ रह के, उसको पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए क्या करें। तो वो इस पेंडेमिक में हमने इस तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर लिया कि इस दिशा में हमने काम करना शुरू कर दिया। तो ये ऐसे ही करना चाहिए। फॉर सर्वाइवल यू हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। अभी इवॉल्व करते करते इस पैंडेमिक के टाइम में आप मिलेनियल जनरेशन का जो सबसे लीथल टूल है सोशल मीडिया, उसमें आपने इंक्लूड किया, और आप नाउ यू आर रूलिंग दैट प्लेस स्पेस आल्सो। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारी मिलेनियल जनरेशन है इस समय, जिसके पास मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन और सारे टूल इंटरनेट के अवेलेबल हैं, उनका दिमाग भी क्रिएटिव है, और वो कुछ कंटेंट बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली एक आइडियल, एक रोल मॉडल की तरह मानते होंगे एज एज ए वेरी इवॉल्व्ड प्रोफेशनल। तो आप उनको कुछ टिप्स दें अगर, कि इस पैंडेमिक के टाइम को वो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या क्या करें वो, हाउ डू दे टेक केयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली पर्टेनिंग टू क्राफ्ट? टिप तो आप बहुत बढ़िया दे रहे हैं। ये आपने जो सीरीज शुरू की है, और ये जो जी। इतना अच्छा विचार जो आप लोगों के मन मस्तिष्क में रोप रहे हैं, वो माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। बस लोग इसके बारे में आत्मचिंतन करना शुरू करें कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपना दुनिया भर का काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तमाम और कंफर्ट से लग्जरीज के पीछे भागते हैं, और चाहते हैं ये हो, वो हो, सब हो। ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन बैठ के इस बात का चिंतन करना बहुत जरूरी है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
अगर हम जंगल में रह रहे होते तो शायद हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हम एक समाज में रह रहे हैं, एक बहुत महान देश में, बहुत महान परंपराओं के हम संवाहक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समाज में, ऐसे देश में रह के सिर्फ अपने विषय में सोचना, ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है। इसलिए हमेशा ये सोचना कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और दूसरा क्या, उसके लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। आप जिस फील्ड में हैं, ईश्वर ने आपको जिस क्षेत्र में रखा है, जिस प्रोफेशन में रखा है, जिस फील्ड में रखा है, उसमें बस उसी में आप सोचें कि हम सेल्फलेस होके हम क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अगर आपको कला के क्षेत्र में रखा है तो आप ये सोचिए कि हम कला के माध्यम से हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आपको फाइनेंस के क्षेत्र में रखा है तो आप सोचिए कि आप उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में अपने सर्वाइवल के बारे में न सोच के हमें ये सोचना है कि हाउ आई कैन सर्वाइव एंड हाउ वी कैन हेल्प अदर्स टू सर्वाइव। तो अगर हम इतना इतना सोचना शुरू कर दें तो उन्हीं में से जो है सब लोग कोई ना कोई चीजों से प्रेरणा पाके, कोई ना कोई टिप्स लेके उनके सर्वाइवल में मदद होती है। हम जरूरी नहीं कि हम जाके खाना बांटे, है ना, जरूरी नहीं कि हम जाके जो है दवाइयां बांटे, ये सब तो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। अपने जैसे आपने सोचा है ना कि अपने इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने घर में बैठ के कैसे हम जोड़ के ऐसे ऐसे लोगों को उनके विचार, उनके अनुभव सुन के उनसे कैसे हम तमाम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये एक प्रयास आपने सोचा। So this is a part of your responsibility. You thought, this is my social responsibility and you did it, अब ये इस तरीके इतने अच्छे अच्छे लोगों को आप लेके आए, मैंने देखे पहले की वीडियोस। अब उससे उसको लोग देखेंगे, सुनेंगे, उससे प्रेरणा पाएंगे, उससे हिम्मत पाएंगे, उससे हौसला पाएंगे, उससे उनको नई दिशा मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। ये इट इज ए ब्यूटीफुल डिस्चार्ज ऑफ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे सब लोग अपने क्षेत्र में सोचें और अपने अपने क्षेत्र में काम करें। और एक नज्म हमने लिखी थी, हम एक उस नज्म की कुछ जो है कुछ लाइनें आपको सुनाते हैं। माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत रेलिवेंट है। वो दिवाली के समय हमने लिखी थी। दिया होता है ना, दीपक, उससे हमने उसके ऊपर ये लिखा था कि मैंने दिए से ये जाना है, मैंने दिए से ये जाना है कि चंद जर्रे खाक से, चंद जर्रे खाक से, दिए बाती और आग से, मेरी जिंदगी का मकसद फकत रोशनी फैलाना है। मैंने दिए से जाना है। क्या बात है। मैंने दिए से ये जाना है, हमारे गुरुओं के ऊपर है। मैंने दिए से जाना है कि किसी ने हाथ बढ़ाकर, मैंने दिए से जाना है कि किसी ने हाथ बढ़ाकर एक लौ मुझ में जगा दी, किसी ने हाथ बढ़ाकर एक लौ मुझ में जगा दी। इस नूर की सौगात को दुनिया तक पहुंचाना है। मैंने दिए से जाना है, मैंने दिए से जाना है। ये तीरगी में दबी दबी, तीर की मतलब अंधेरों में, मैंने दिए से जाना है। ये तीरगी में दबी दबी महवे ख्वाब है जिंदगी, तीरगी में दबी दबी, ख्वाब में डूबी हुई है। तीरगी में दबी दबी महवे ख्वाब है जिंदगी, उठा चराग ये चारा घर की रूहों को जगाना है। मैंने दिए से जाना है, मैंने दिए से जाना है। तो मुझे लगा कि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिए से हमने ये सबक सीखा है कि हमें लोगों के हृदय में, उनके दिल में एक रोशनी, एक चिराग को जलाना है और उनकी लाइफ को प्रेरित करना है। आई थिंक दैट इज utmost responsibility that we should discharge, that we should keep in mind, and we should always do for our society and for our country and for our great culture and for our great heritage. वंडरफुल, अमेजिंग। और जो अभी आप पढ़ के सुना रहे थे, शायद इसी लिखने की क्वालिटी की वजह से इंटरनेशनली आपको साहिल के नाम से जाना जाता है। जी, साहिल हमारा तखल्लुस है।
जी, वी वर सो जी फॉर्चुनेट कि आपने इतने इस रिलेवेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इतनी खूबसूरत अपनी लिखी हुई ये कविता सुनाई। थैंक यू, शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा थैंक्स। लगा आपसे बात। जी, I'm very sure कि all across the world जो मेरे दोस्त हम लोगों की ये conversation सुन रहे होंगे, this dialogue between us will definitely work as a catalyst in their thought process, and all of us will evolve as a better human being. Thanks a lot. Thanks a lot for accepting, Ravin ji. थैंक यू, थैंक्स। नमस्कार।